we have a very interesting panel and great speakers today to bring back some excitement. And we'll quickly jump into it. And let's start by understanding how has journalism grown over the last few decades. And I'll start with you, Nandita. And what's your perspective on how has journalism moved over the last few decades? I started my journalism in the early 90s when we had to type on the typewriter, and you made a copy, and if you made a mistake you white inked it, and in case we had to do our reports we had to go to on the field, find out, then go and submit. Or if we had to find out, we needed to do some research, we'd go to the newsroom, we'd get into we pull out the old microfiches, get information on a person or incident, look up encyclopedias, everything. So it was a completely different ballgame altogether. Then came in the electronic typewriter, which made life slightly more easier because all you did is press one and the space went. Of course, from then, the personal television, either computer, where things were so much easier. But for us, with typing and longhand, it was difficult, but life became so much easier because you just did it. And then, of course, with the switch of a button, whichever part of the world you were, your copies just went. You didn't have to run to the news office. You didn't have to submit your copy. So I come from that genre of journalists who really went into the field work. Today, of course, is the social media. It is online journalism. It's online social media and newspapers. I get 5 newspapers a day, till even today. But I barely get to see the headlines because most of it I'm reading online. But the problem is how many of them are actual journalists in that sense. Everyone has become a citizen journalist. Everyone has started their online portals. And it's so easy. There are 5 people doing, and the 6th person is just looking up the news and culling it and making their own news. So whether it's a Google auntie or a wiki uncle, whatever, there's a lot of factual errors. So that is what I feel is the journalism from my time till today. So that's a very interesting journey that you have mentioned. Arun, what's your perspective on this? देखिए, मैं हिंदी में बोलूं चलेगा ना? Absolutely. ठीक। मैंने 1999 में एक किताब पढ़ी थी, एक बड़े he was considered to be a doyen of journalism in India, D.R. मानकेकर। D.R. मानकेकर साहब, मतलब he was somebody like 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो उनको 45 में वो रॉयटर्स की तरफ से जो है बर्मा फ्रंट के ऊपर जो है वो कवर कर रहे थे। देन टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रहे, एक्सप्रेस के एडिटर रहे। तो उन्होंने ना एक किताब लिखी, PDF उसकी आपको मिल जाएगी इंटरनेट आर्काइव पे, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाइए आप। उस किताब का नाम था नो माई सन नेवर। तो वो एक 100 पेज की किताब है, सेमी फिक्शनल किताब है। तो उसमें एक बच्चा है, मतलब यंग लड़का है, वो अपने पिताजी उसके जो है वो अखबार निकालते भी हैं, उसके मालिक भी हैं, उसके संपादक भी हैं। तो अपने फादर से ये कहते हैं कि पिताजी मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी उससे कहते हैं नो माई सन नेवर। और उन्होंने वो पूरी किताब, फिर एक अकाउंट है उसका कि वाई ही शुड नॉट बिकम अ जर्नलिस्ट। मैं गलती से 1995 में बन गया था, मैंने वो किताब पढ़ी नहीं थी, ठीक है ना। और मैं आपको, बट सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि 1999 में भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन थी जो 1966-67 की लिखी हुई किताब की थी। तो पहली बात तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं हो रहा है जो कि बाकी लोगों के साथ नहीं हो। पत्रकारिता की हालत हमेशा वैसी ही रही, थोड़ा सोफिस्टिकेशन के आवरण में रही। हमने इमरजेंसी का दौर देखा है, जैसे हम आज ये बात करते हैं कि एथिक्स नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है। तो आप लोगों को याद होगा कि जो है LK अडवाणी ने जो है माई प्रेजेंट डायरी में लिखा, जर्नलिस्ट्स वर रेडी टू क्रॉल व्हेन दे वर आस्क्ड टू बेंड। तो हमारे यहाँ पे जो है वो पत्रकारिता का 47 के बाद से, और मैं क्विकली आपको 2-3 डिफाइनिंग मोमेंट्स बता देता हूँ जो मुझे लगते हैं हिंदुस्तान की पत्रकारिता के, नंदिता जी की बात को आगे बढ़ाते हुए।
देखिए पहला डिफाइनिंग मूवमेंट तो ऑब्वियसली इमरजेंसी का था, हमने देखा, ठीक है ना। दूसरा जो है वो डिफाइनिंग मूवमेंट था कि जब हमने ये देखा, जो एक पॉजिटिव डिफाइनिंग मूवमेंट था जिसमें कि रीअसर्ट किया जब बोफोर्स का स्कैंडल जो है वो ब्रेक हुआ, तो हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरीके से एक पूरी सरकार को बेसिकली जो है वो पत्रकारों ने गिरा दिया और पूरे देश का माहौल बदल दिया। इसके बाद जो है वो एक और जो है वो डिफाइनिंग मूवमेंट हुआ कि जब टेलीविज़न लॉन्च हुआ, और टेलीविज़न लॉन्च होने के बाद मुझे साल एग्जैक्ट ध्यान नहीं है लेकिन शायद 2000 के आसपास का होगा, कुरुक्षेत्र के पास जो है ना एक बच्चा जो है एक मेन होल, एक वो जो ट्यूबवेल के लिए जो है हम होल्स खोदते हैं ना, हाँ प्रिंस। तो वो क्या हुआ कि कई जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं ना वो कभी इंसिडेंटली हो जाती हैं। तो क्या है, जी की ना उस समय, अभी तो आप देखते हैं जैसे वो लाइव हो जाता है ना, पहले एक बहुत बड़ी वैन होती थी उसके ऊपर डिश एंटीना लगा होता था, तो वो जा रही थी एक जी की जो है वैन, तो जी की वैन जा रही थी, उन्होंने देखा भीड़ लगी हुई है, उन्होंने कहा भीड़ लगी है तो कोई बात नहीं, जो है देखते हैं क्या, तो बोला बच्चा होल में गिर गया, उसने बोला लगा दो, वो भी जा तो रही हैं, पेट्रोल तो खर्च हो ही रहा था, जो थोड़ी देर रुक के कर देते हैं ब्रॉडकास्ट, आधा एक घंटा स्टूडियो में कनेक्ट किया, ब्रॉडकास्ट किया, रेस्ट इज हिस्ट्री। जो है कि पीएम ने भी जो है, मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और वो एक जो लाइव जिसको आप कहते हैं ना कि जर्नलिज्म का जो हर चीज को लाइव दिखाना, तो ये एक फिर जो है वो ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ। तो ये कुछ जो है, और फिर जब इंटरनेट आया तो वो हमने देखा कि एक उसके बाद जो है एक वो डिफाइनिंग मूवमेंट था जिसमें कि तो ये कुछ जो है वो डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं। एक जो है सबसे बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, गिरिलाल जैन जो है बहुत बड़े एडिटर थे, जो लोग यंग लोग हैं वो उनके बारे में पढ़ लें। गिरिलाल जैन जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे, और उनके बारे में ये फेमस था, 1980s की बात है ये, कि जब वो एडिट लिखा करते थे अपना, तो 12 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में या 3 बजे तक एडिट लिखते थे, तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि भैया अगर मतलब प्रधानमंत्री का असैसिनेशन ही हो जाए तो तभी मुझे डिस्टर्ब करोगे, नहीं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इवन ही विल नॉट टेक द कॉल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो साहू अशोक जैन जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक थे, उनका जो बेटा है बड़ा समीर जैन, तो वो बाहर से पढ़ के आया था, तो वो गिरिलाल जैन से मिलने के लिए आया क्योंकि उसको टेक ओवर करना था। तो वो आया, उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने पूछा भाई कौन हो आप, उसने बोला मैं समीर जैन हूँ, तो उसने बोला बैठ जाओ, ठीक है ना, क्योंकि वो सब 12 साढ़े 12 बजे आ गया था, उसे 3 घंटे बैठाया उन्होंने, ठीक है ना। 3 घंटे के बाद गिरिलाल जैन उससे मिले। दैट डे समीर जैन डिसाइडेड दैट आई विल डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशन ऑफ एडिटर इन जर्नलिज्म, एंड ही डिड इट, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया टुक द लीड, एंड रेस्ट एवरीबडी बेसिकली फॉलोड इट। इंसिडेंटली आपको बता दूं कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है वो साहू अशोक जैन जो समीर जैन के फादर थे, उनको दहेज में मिला था डालमियास से, ठीक है ना, 1960s के अंदर। तो वो एक डिफाइनिंग मूवमेंट था जिसमें उन्होंने तय कर लिया कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसका प्रमाण ये है कि न्यूयॉर्कर में, अगर आप ऑनलाइन जाके देखेंगे, कुछ साल पहले 60 पेज की एक स्टोरी छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर जो है। तो न्यूयॉर्कर में उन्होंने जब समीर जैन का इंटरव्यू है उसमें, समीर या कोट है, तो समीर जैन से उन्होंने ये पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यूज़ मीडिया। तो उसने बोला हु टोल्ड यू दैट वी आर इन द बिजनेस ऑफ न्यूज़, we are not in the business of news, we are in the business of advertisement, news just happens around it. So these are the defining moments of basically journalism, जिसका कि आप impact। और बस एक छोटा सा एंड में एनेक्डोटल, थोड़ा शाम का टाइम है तो वो बताए, तो मैं डिस्कस कर रहा था अभी निधि जी से कि वो हमारा टॉपिक है कि जिसका सेकंड पार्ट है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, है ना। महात्मा गांधी जब, तो मैं ये सोच रहा था कि इस टॉपिक पे क्या बोलना चाहिए, तो फिर मुझे एक एनेक्डोट ध्यान आया कि महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब लंदन गए और वो अपने शिप से उतरे, तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, मिस्टर गांधी व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्रिटिश सिविलाइजेशन। तो उन्होंने बोला इट्स अ गुड आइडिया। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मेरा व्यू पॉइंट जो है वो एथिक्स और उसके बारे में क्या है। It is very challenging to come after two good speakers. So I'll keep it very short. How has journalism evolved? जब हम लोग आए, मैं 1997 में was my first stepping into journalism. जब हम journalism में आए, हम लोग को ट्रेनिंग मिलती थी,
कि ऐसे होता है, ये ऐसे लिखा जाता है, दिस इज हाउ वी डू इट. आज की डेट में सब जर्नलिस्ट हैं. All of you sitting here in this room are all journalists. हम सब पत्रकार हैं because everybody has a cell phone in their hands. I'll give you a personal example. 2022 Bihar elections. My colleague went to cover Bihar elections and he went to Muzaffarpur, came back and मैंने कहा क्या माहौल है? तो मैंने कहा यार सब ठीक है, कोई अखबार नहीं पढ़ता. मैंने कहा हाँ वो तो पता है कोई अखबार नहीं पढ़ता. बोले नहीं यार कोई टीवी भी नहीं देखता. तो मैंने कहा कोई टीवी भी नहीं देखता है? बोले नहीं यार किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है. तो मैंने कहा इलेक्शन कवर कैसे हो रहा है, इलेक्शन कौन करता है, क्या करता है? बोले वहाँ पे ना कोई ना टीवी देखता है ना अखबार पढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे हर गली में ना एक ही चैनल चल रहा है, हमार खबर बबुआ. तो हमार खबर बबुआ वॉज नथिंग बट अ हैंड हेल्ड, नॉट इवन अ कैमरा, अ मोबाइल फोन. ही हैड अ सेल्फी स्टिक. And that man would go about in every small gully. So मुझे क्या चाहिए, मेरा what is my problem? My problem is मेरे घर के सामने की नाली ब्लॉक हो गई है, तो वो भी कवर करके देगा. That is journalism for you. हम यहाँ ethics की बात कर रहे हैं. The hand-held mobile phone, anyone who has that is a journalist. Any accident that happens, people rather than helping the person, that's very beyond ethics and all of that. We make small films and we put it up online. That's journalism right now. That's how evolved, call it evolution or whatever, that is journalism for you right now. That's all I would add. And we open it up. That's a very interesting point that you made, Nidhi. And इसी point पे my next question, अगला सवाल ये है, तो जो हम टीवी पे देखते हैं, जो आपने सही कहा कि जर्नलिज्म इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड, एवरीबडी इज अ जर्नलिस्ट एंड वी क्रिएट एंड कंज्यूम आवर ओन न्यूज. सो देन वॉट एवर हैपन्स ऑन न्यूज चैनल्स, इज दैट जर्नलिज्म और इज दैट एंटरटेनमेंट? Well, television channels today, in fact, one of the reasons why I stopped active journalism is because the way journalism had really deteriorated in the last decade, I would say. And that happened not so much with print, but with the advent of, first there were a few good news channels, and then there were lots of news channels, and every day, every minute there was a breaking news. Earlier, breaking news was when there was a breaking news. Now with so many breaking news every moment and so much of jingoism happening, one was very saddened. And most of the channels at that time was paid. You know, earlier channels had their leanings to left, right, center, whatever. But here it was clearly paid, a lot of channels, most of them. So it became very sad. And then what happened? These channels were competing with one another. And their breaking news became more entertainment. And during the entire COVID, when we were all sitting at home, I mean, just before the COVID, what was the highlight? What was the news which really entertained all of us? And we can't be dishonest about this, was the Sushant Singh murder. I mean, come on, there were other things to tackle. But whoever spoke about other things, okay, this is happening in the world, etc. But what really went was A, B, C, D. I think all of us knew all the details. And like the SSR, there were many other things. Sri Devi's death, it became another hangama. So it's become more to increase your TRPs. For you to grab the balls of the viewer, you need to have a bit of entertainment, a lot of Bollywood, and less of news. That's what I feel. Your view on prime time television, जो होता है 9 बजे, वो क्या होता है? वो कहते हैं ना, कहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए. ठीक है ना. तो देखिए ऐसा है, एक ना वो शेर है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, है ना, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. तो टेलीविजन की एक दिक्कत है, इट इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स. देखिए न्यूज़ गैदरिंग टेलीविजन में इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस.
अगर आप कैलकुलेट में अभी ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, बट अगर आपको एक दिन के अंदर प्राइम टाइम में क्या होता है, जैसे आपने प्राइम टाइम की बात की, तो प्राइम टाइम में तो आपको हर एक घंटे में व्हील चेंज करना होता है, आपकी टॉप की 3 हेडलाइंस डिफरेंट होनी चाहिए, तो यू नीड टू हैव न्यू कंटेंट। मतलब आपके पास कुल मिला के 30-35 स्टोरीज शाम का प्राइम टाइम चलाने के लिए अच्छी होनी चाहिए, जो आपने ग्राउंड से गैदर की गई हो, अगर आप न्यूज़ शो करना चाहते हैं तो। एक न्यूज़ को गैदर करने का एवरेज जो है 2 से 3 लाख रुपए खर्च आता है, जो है पूरा अगर आप प्रोसेस उसका लगाएंगे तो 70 लाख रुपए कमोबेश आप लगा लीजिए, ठीक है ना। और महीने के कितने हो गए, जो है 21 करोड़ है ना, साल के कितने हो गए 240 करोड़, ठीक है। अब आप इसका दूसरा मॉडल देखिए कि आपने शाम को बिठा लिया, ANI या एजेंसी आपने ली हुई है, उसके आप पैसे दे ही रहे हो, आपने उससे एक खबर ली। मैंने खुद टेलीविजन में काम किया है, जो है आज तक में काफ़ी साल, ठीक है ना। तो वहाँ सुबह जब एडिट मीटिंग होती है टेलीविजन में, तो उसकी लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है इंटरनली। वो ये होता है आज क्या खबर है, ये खबर है, तान दो, ठीक है ना। तान दो मतलब पूरा दिन वही खबर चलेगी। शाम को उस पर प्राइम टाइम में लोग बैठेंगे, पहले तो 5-5 हज़ार रुपये दे देते थे पैनलिस्ट को एक अपीयरेंस के, अब वो भी नहीं देते, अब तो पैनलिस्ट अपने हाथ से देते हैं पैसे बैठने के लिए। भाई आप सेलिब्रिटी बनते हो, कोई जिस भी प्रोफेशन में लोग रिकॉग्नाइज करते हैं उस चीज़ को, तो आपका पूरा का पूरा बुलेटिन शाम को बेसिकली जो है ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे निकल गया। आप साल के 240 करोड़ रुपए बचा रहे हो। आप टीवी टुडे की बैलेंस शीट उठा के देख लो, जो सबसे सक्सेसफुल चैनल है, ठीक है ना, उसका जो है वो साल का प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ से ऊपर का नहीं है। आप उसको कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो 240 करोड़ रुपए खर्च करेगा? दैट इज द रीजन जो है की हो रहा है। दूसरा जो नंदिता जी ने बात की, एक मैं थोड़ा सा आपको, एक हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग मतलब दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली वालों की बीमारी है ये, उनको लगता है पूरा हिंदुस्तान यही है, मैं उसमें शामिल हूँ। ऐसा है कि रीजनल लैंग्वेजेस में अच्छा काम हो रहा है, जिसको रीजनल नहीं कहना चाहिए, अन्य भारतीय भाषाओं में अच्छा काम हो रहा है, कुछ अच्छे चैनल्स भी चल रहे हैं। इंग्लिश वगैरह का तो एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा है, द नेशन वांट्स टू नो, ठीक है ना, तो वो एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा है, उसका जो है इम्पैक्ट कम है बेसिकली उसका उस तरीके से। तो क्या है कि रीजनल भाषाओं में अच्छा काम हो रहा है, क्षेत्रीय भाषाओं के जो अखबार हैं उनमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जैसा निधि जी ने भी बताया कि डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स ऐसी चल रही हैं जो है जिनके ऊपर अच्छा काम हो रहा है। तो अच्छा काम भी हो रहा है, जो है होता क्या है, अपने समाज की एक आदत है जो है ना कि मतलब किस मोहल्ले में किसी के बच्चे ने टॉप कर लिया हो, ठीक है ना, और उसके लड्डू बट रहे हो, उस पर तो चर्चा नहीं होगी। कोई बेचारा फेल हो गया तो साला जो है पूरे शहर में खबर फैल जाएगी उसकी जो है। तो यही प्रॉब्लम है, जो खराब काम होता है वो एम्पलीफाई होकर बहुत ज़्यादा दिखता है, जो अच्छा काम होता है वो अपने समाज में थोड़ी सी ऐसी अभी भी चीज़ है कि वो इतना ज़्यादा नहीं दिखता है, और जो अच्छा काम करने वाले होते हैं वो बहुत ब्रेजन भी नहीं होते हैं, वो मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बट गुड कंटेंट इज गेटिंग क्रिएटेड। अच्छा है, मैं होपफुल हूँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जिंगोइज्म है, सारी चीज़ें हैं, पर ये वेस्ट में भी है, जिसको हम आइडियल रोल मॉडल मीडिया के मामले में मानते हैं। आप फॉक्स न्यूज़ को देखिए जो है कि किस तरीके से वो करते हैं, ठीक है ना, या उनके कुछ ऐसे वो ब्लॉगर्स हैं उनको आप देखिए, लेकिन वहाँ अच्छा काम भी होता है बेसिकली, ठीक है ना। सो हमारे यहाँ वायर है तो उधर BBC है, ठीक है ना, तो इट विल ऑलवेज बी, एंड मीडिया विल बी ऑलवेज आइडियोलॉजिकली ड्रिवन, बट यू हैव टू लुक एट दी फाइनेंसेस। देखिए एक छोटी सी बात कह के, मैं पत्रकार हूँ भैया, मुझे भी अच्छी तनख्वाह चाहिए, मुझे भी हर साल इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है ना, मुझे भी जो है वो क्या कहते हैं चाहिए कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन हो, ठीक है ना, और मैं भी आगे ग्रोथ करूँ। तो भैया फिर ऐसा है कि या तो हम उसकी बात कर लें, हम प्रॉब्लम ये हम बात कर रहे हैं जर्नलिज्म के एथिक्स की, चलाना कॉर्पोरेट की तरह है, और पत्रकार भी यही चाहता है कि कॉर्पोरेट की तरह चले, क्योंकि तभी तो जब पैसे नहीं बनेंगे तो मिलेंगे कैसे भाई, पैसे तो चाहिए ना। फॉर अ हंग्री मैन यूटोपिया इज अ वर्ल्ड फुल ऑफ फूड। तो इसलिए ये सारे बड़े इंटरनल कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हैं उसके जो है, तो मुझे यही कहना है। देखिए, आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट आर लाइक द फेवरेट विपिंग बॉय ऑफ द सोसाइटी। ये क्या गलत है, मिसकोट हो गए यहाँ पे, क्या आपने ये कहा था, नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मुकर जाते हैं लोग। सो वी आर ऑलवेज, बिकॉज वी आर द मैसेंजर्स, द ईजिएस्ट थिंग इज टू शूट द मैसेंजर, राइट। तो जो मैं यहाँ पे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आई फील दैट इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन।
What else explains the voyeuristic pleasure of watching Big Boss? Big Boss is not news, right? It is not news. यहाँ पे देखिएगा सबको बिग बॉस के बारे में पता होगा. परसों मुझे एक आदमी के बारे में पता चला जिसका नाम है औरी. मुझे पता ही नहीं. एग्जैक्टली, दिस इज, यू जस्ट प्रूव्ड माई पॉइंट. ऑल ऑफ यू सेड औरी. एग्जैक्टली. यहाँ पे मेरे पब्लिशर ने उसी इंस्टाग्राम वाले प्लेटफॉर्म पे मेरी किताब गिव अवे की कि वील हैव अ क्विज, यू नो निधि, दिस इज अ वेरी ब्राइट मार्केटिंग दिस गिमिक. we'll give away, you know, they'll answer 5 questions and we'll give away your book on what? Indian women in politics. Trust me, I'm sure nobody participated in this thing, but everybody knows Ori, who said, I know how to live. What is his job? I'm not trying to take a moralistic stand. He attends parties. I got to know about the gentleman day before yesterday, and while I was stuck in a jam yesterday, I was coming back and I was listening to his interview. मैंने 20 मिनट सुना. मैंने 20 मिनट अपनी लाइफ के दिए उस इंटरव्यू को. मैंने जवान भी देखी है. देखिए, नो दिस थिंग. आई हैव व्हाट इज इट? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर टाइम्स. आई गिव यू व्हाट यू वांट टू गिव मी, राइट? You will get the news. Because as he said, TRPs are important. So don't you think we have stopped reading the newspapers, which were the real way? I learned news by that. हम लोगों को तो पेरेंट्स बिठाते थे, दूरदर्शन देखो, ये देखिए सिद्धार्थ काक साहब क्या बोल रहे हैं, सुनो, आप सुनो. क्यों? हम सुर भी देखते थे. That was our way of knowing about India. Why did we watch, what was that quiz program, Britannia वाला जो You था? mentioned Surabhi, we have Siddhartha sitting here. Yes. So Bonvita quiz. Bonvita quiz. Mastermind BBC. We grew up. I meet Derek O'Brien. I tell him in Parliament. I tell him, मैंने सर आपको देख के बड़े हुए हैं. हम लोग को पता होता था यार. So we were what? I know we were a very bored generation that took to books, but are you all reading? So I provide you news that you guys want to do it. So why am I being whipped over something like that? क्यों 9 बजे लड़ाई दिखाइए ना? Because I'm giving you a mini Big Boss. Everybody is fighting everybody. Why else do you think on reality shows we are talking so rudely to children? You know, तुम अच्छा नहीं गाते हो. यार क्यों नहीं अच्छा गाते हो? वो शायद अच्छा गणित करता होगा. So we are giving the society what they want to, that's the content they want to take. I'm not saying I'm dumbing down news. There is enough of Hindu, there is enough of ET in the world. I'm not dumbing down news. They are taking the content. If I don't give them the content, they will go to some other news outlet. Absolutely, point taken on that. So we have established that journalism has evolved over time. We have established that journalism reflects what times demand. So whatever is the society demanding is what is being given back to them. The next question to us is that then what role does ethics play in journalism? In the yesteryears, what news goes out, what doesn't, and in what form and what narrative it goes out was what probably was defined by ethics. But given that the times have changed, has the definition and the need for ethics also changed? This time I'll reverse and I'll start with Nidhi. Ethics. See, when we talk about ethics in journalism, yes, that's a very, very big issue right now. See, I've always maintained, we had this session right before this also, I've always maintained that there will always be pressures from the government. As journalists, as working journalists, we've always seen it. अब आज की डेट में हम लोगों को क्यों हम सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं और फिर भी एक ही पार्टी की सरकार बार बार क्यों जीत के आती है? क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस का जो फैक्टर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है, वो शायद आर्टिस्ट्स और जिन आर्टिस्ट जर्नलिस्ट उनको ही खलता है, बाकी सब किसी को खलता नहीं है. सो बट देयर विल ऑलवेज बी प्रेशर्स एज फार एज गवर्नमेंट्स आर कंसर्न्ड, एंड वी विल ऑलवेज फील इट. be it the right wingers who are winning all across the world, be it any dispensation, because nobody likes to be questioned. मतलब आज मैं बोलूँ भाई, if I tell my child नहीं आज आपको आज दाल चावल ही बने, he'll not like it. I want roti.
It's as simple as that, right? So I will never like anyone to dictate terms to me, obviously. So if I'm questioning the government, nobody will like me. I have this put up in front of my desk which says, I thrive on no. I thrive on no. I'm a journalist. I thrive on no. You say, no, I will not give you this information. I will get it. I will get it because that's my job to get it. Now, I will feel the pressure, be it a Congress-led UPA government or a BJP-led NDA government. It is for me to see whether I give in to the pressure, whether I remain a part of the system, and at this present times, the new trend that I see in news is to go towards new media, where people come together, like-minded people come together and float their own YouTube channels. But I see this as a great sign of a vibrant democracy, that they find a space to do this. Well, I would say there are both the pros and cons of citizens journalism. People getting together. There's more democracy. There's more freedom. But what happens is we lose out when we, as journalists, we learn. Whether as a trainee or we go to institutes or whatever, I've never been, I'm not a qualified journalism per se, but I learned on the job. But you learn certain ethics, which is very, very important. But today, everyone has become a journalist. Some of them adhere to the ethics, most of them don't. And that is a very sad and also a very dangerous part. I do like that you thrive on no. Yes, it is our job to go and get it. Whether, they give it to us easily or not. But even to get it, we have to follow certain ethics. And as journalists, I think, as in the medical profession, as in the legal profession, and more so in journalism, we have to be ethicals, we have to follow certain standards. And if we don't learn it, we have to use our own judgments, our own moral judgments. We have to take it from, the people around, from society. And I think that is what is sadly lacking today. And this trend has come in the last decade, or a little more than over a decade. Because when we started out in the early 90s, it was the truth and nothing but the truth. Today, the truth has gone, it's very malleable. So it keeps flowing all over. And, well, I think ethics has suffered and we need to be more ethical. देखिए, मुझे तो ना ये एथिक्स शब्द से ही समस्या है. उसके कारण मैं आपको बताता हूँ. ऐसा है कि एक्चुअली हमारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ना, वो सारी वेस्ट से आई हुई हैं. वैसे वेस्ट को हर चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करना फैशन है, बट मैं उस सेंस में नहीं. एथिक्स जो है ना, वो एक जो पूरा कैथोलिक एक क्रिश्चियंस का एक पूरा एक जो ट्रेडिशन था, उससे निकला. एथिक्स का मतलब अगर आप देखेंगे तो वो है उचित और अनुचित के अंदर अंतर करना, और ये एक मोरल स्टैंड लेकर करना. अब डिजिटल वाले में हमारे यहाँ जो है वो एथिक्स नाम का की कोई वो नहीं थी. हमारे यहाँ जो चीज़ थी वो थी नीति शास्त्र. ठीक है ना. तो पहली चीज़ तो ये, अब नीति शास्त्र क्या कहता है और एथिक्स क्या कहते हैं. एथिक्स ये कहता है कि इट इज़ राइट टू कम्पीट विद ईच अदर. और एक डिबेट, जो वेस्ट का एथिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि ये बात एथिकल है कि जब कोई डिबेट होगी तो उस डिबेट के अंदर वन पर्सन हैज़ टू डिफीट द अदर पर्सन और टू स्कोर अ ब्राउनी पॉइंट ओवर द अदर. दैट इज़ द जो है, सो दैट इज़ एथिकल. ठीक है ना. हमारे यहाँ नीति शास्त्र क्या कहता है? हमारे यहाँ नीति शास्त्र ये कहता है, हमारे यहाँ विवाद नाम का तो शब्द ही नहीं होता था. हमारे यहाँ दो शब्द थे नीति शास्त्र में, एक वाद और एक संवाद. और हमारे यहाँ अगर कोई बहस होती थी या शास्त्रार्थ भी होता था, तो उसका पर्पस ये होता है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, द पर्पस ऑफ हैविंग अ डिबेट और डिस्कशन or sharing of information is so that we can reach nearer to the truth. हम सत्य के पास पहुंच सकें.
तो हमारा जो जर्नलिज्म का जब तक 47 तक था जर्नलिज्म ठीक था, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आज़ादी में जितने भी हमारे बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, सब अखबारों के संपादक थे, सब ने अखबार निकाले. So what they were trying to do, they were trying to reach nearer the truth. And there was one truth on which everybody agreed कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना, ठीक है ना. उसके बाद जो भी खैर कमर्शलाइजेशन हुआ, that's a different matter. तो साहब आप जो है वेस्टर्न मीडिया का अगर जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, और अपनी बात में इस पे कह के समाप्त करूंगा. इस सृष्टि के जो पहले पत्रकार हैं वो भगवान नारद माने जाते हैं. हमने उनको जो है ना इतना मतलब जिसको बोलते हैं उनको इतना हास्यास्पद बना दिया, ठीक है ना. और वो एक प्लान के तहत हुआ पूरे का पूरा 200-250 साल जो पूरा कॉलोनियल डिस्कोर्स चला जो है. अगर आप नारद संहिता पढ़ेंगे, बट वाज नारद जी डूइंग? नारद जी वॉज बेसिकली तीनों लोगों के बीच में बेसिकली ही वॉज एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन. हमने उनको ये दिखाया ये चुगलखोर है. और ये चुगलखोर हमने क्यों दिखाया? बिकॉज दिस वॉज द टिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द वेस्ट. देखिए वेस्ट में खबर का क्या कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ाते हैं जर्नलिज्म में. नंदिता जी, दीपांकर जी भी जानते हैं, ये भी है. पहले दिन जिस दिन जर्नलिज्म में स्कूल में बच्चा जाता है ना, उसको पहली चीज़ ये बताई जाती है कि भैया व्हाट इज़ न्यूज़, जो उसकी पूरे लाइफ लॉन्ग वो करती है, जिसके अंदर ये एथिक्स सारी चीज़ें कवर होती हैं. जो है उसको ये समझाया जाता है कि भाई कुत्ता आदमी को काटेगा तो खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काटेगा तो खबर है, ठीक है ना. थोड़ा अंग्रेजी में सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसको बोलते हैं कि व्हेन अ डॉग बाइट्स अ मैन इट इज़ नॉट न्यूज़, व्हेन अ मैन बाइट्स अ डॉग इट इज़ न्यूज़. तो अगर आप वो करेंगे, और अगर हमें अपने जर्नलिज्म को ठीक करना है, ये तो हो गई समस्या. महाभारत में जनक और एक हमारी जो सुलभा जो है एक बड़ी मतलब एक महिला विदुषी थी, उनके बीच में एक वो है डिस्कशन है, एक लंबा डिस्कशन है, जिसमें कि जनक उनसे पूछते हैं, सुलभा से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि जो आइडियल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है ना, वो कैसे होती है, एक आइडियल डायलॉग कैसे होता है. तो वो उसको उसकी 18 क्वालिटीज बताती हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, बिल्कुल टेंजिबल, कि अगर आपको कोई भी जो है डिस्कशन करना है तो ये 18 क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए. और ये 18 जो है खराब चीजें हैं जिनसे कि बचना चाहिए. तो हमारे पास पूरा मैनुअल है, सब कुछ तैयार है जो है, पर हमने अगर जो है वो कुत्ते और आदमी को काटने के ऊपर ही जो है खबरें, अगर जो हमारा कॉन्सेप्ट ही यही होगा तो हम कैसे करेंगे. तो ये जो वेस्ट के हम ना वर्ड्स ले लेते हैं सारे के सारे जो है, क्योंकि हमें भी यही कि हमने एथिक्स ले लिया, हमने इंटीग्रिटी ले लिया, हमारे यहाँ के शब्दों की, तो हम तो अपने शब्दों के जो है वो सही, जैसे रिलीजन, धर्म का मतलब रिलीजन हो ही नहीं सकता. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. राष्ट्र और नेशन जो है वो बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है. संस्कृति और कल्चर बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है. जैसे मैं आपको छोटा सा ये बताता हूँ, फिर बात अपनी खत्म करूंगा. तो हम जिन टूल्स को लेके हमारे एज ए जर्नलिस्ट, व्हाट आर माय टूल्स? माय टूल्स इज माय लैंग्वेज. What is the language which I am using, which is not conveying the right meaning? राष्ट्र का मतलब, नेशन का मतलब हम सभी जानते हैं नेटियो शब्द से निकला है, लेटिन के, जिसका मतलब है पैदा होना, कि भाई ठीक है कि कोई जो है वो एक देश पैदा होता है. और राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र जो है वो राज नाम की संस्कृत धातु से बना है, जिसका कि मतलब ये है चमकना. बेसिकली जो है टू लीड्स अस ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, दैट इज व्हाट राष्ट्र इज. तो भाई साहब अगर हम अपने शब्दों को तो पहले ठीक करें, तो हम शब्दों को ठीक करेंगे तो हम मतलब भी ठीक कन्वे कर पाएंगे. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और बाकी ये है कि मैं तो स्टिल, देखिए मैं एक बात मानता हूँ, आज के जर्नलिस्ट, जब मैं जर्नलिज्म में आया था, मैं, नंदिता जी और हम लोग जो है एक कंटेम्प्रेरी हैं, मैं जितनी मेहनत करता था आज के जर्नलिस्ट उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं. मैं तो भाई शाम को आता था जो है 2 खबरें लिख देता था, ठीक है ना, 3 खबरें लिख देता था, और वो भी जो है एडिटर ये कह देता था, भाई पेज में ऐड है, ज़्यादा जगह नहीं, 350 वर्ड से ऊपर मत लिखियो. तो हम तो अपना खबर लिखी और चले गए क्लब, ठीक है ना. आज जो बेचारा जर्नलिस्ट है वो सुबह उठता है, सबसे पहले उसको ट्वीट करना पड़ता है, फिर उसको जो है क्या कहते हैं डिजिटल के लिए स्टोरी फाइल करनी पड़ती है, फिर वो बेचारा फेसबुक लाइव करता है, फिर वो इंस्टा के लिए कुछ भेजता है, फिर दोपहर में वो कहते हैं अरे स्टोरी तो पुरानी हो गई, अब नई स्टोरी लाओ. तो वो 24/7 काम कर रहा है वो बेचारा जर्नलिस्ट जो है, और अच्छा काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है. बाकी देखिए काम करते हो, कमियां सब जगह पे रहती है, बट आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस थिंग. आई थिंक जर्नलिस्ट आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, जो है मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. बाकी यू नो देयर आर बैड एप्पल्स एवरीवेयर, जो है वो तो सब जगह होता ही है. Before we end the session, closing remarks from all three of you. The question is different. What do you think is the future of journalism? Journalism का future क्या है? You want me to do that?
I think I want to be an optimist here, though there are many naysayers, and I see a lot of journalists actually going to corporate jobs and all. But I think journalism in any democracy in today's world is essential. And like any world which is seeing a churn, I think we will find an equilibrium. And as I said earlier, that it is a reflection of our times, and the times are changing. The problems never change. The problems remain the same. We saw dictators using the media to push their, I'm sure people who are in theater, in cinema, all of us have read the history, how Hitler used the popular culture to peddle his, his ideology. It has happened. Governments misuse medium. Journalism is misused. But I always feel we find our equilibrium. I feel that the churning will happen, and whatever is the best form, it will always come out. I agree with Nidhi a lot that I'm very optimistic about journalism. It's the fourth pillar of democracy. It can never go outdated, never be outdated. Yes. Currently, I do feel there's a lot of lack of ethics, and I do not agree with my co-panelist on that sphere. But it is like a phase. You go through ups, you have a down period, and you bounce back. It's happened in every field. So this will also, but yes, journalism is important. It will bounce back. It will be better. Including TRPs, including ads, it will still survive and be better. It's only a phase. देखिए, मुझे लगता है कि जर्नलिज्म बड़े उस पे नमिता जी ने जैसे कहा, मतलब दोराहे पे खड़ा हुआ है या चौराहे पे खड़ा हुआ है, जैसा भी आप मान लीजिए। और जर्नलिज्म भी समाज का पार्ट ही है। जैसे समाज में डिटरेशन होता है चीज़ों का, वो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो जर्नलिज्म में भी रिफ्लेक्ट होगा। मुझे लगता है कि जिसको आप बोलते हैं कि एक ट्रांजिशनरी फेज़ है, एक संक्रांति काल की बेला है। अब इसमें जो है वो टू लार्ज एक्सटेंट जर्नलिज्म के साथ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम और एक ये भी आ रही है कि वी आर नॉट एबल टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन, हम रेगुलेट होना नहीं चाहते, हम सेल्फ रेगुलेट कर नहीं रहे हैं। और ख़ासकर ये जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया हो गया है उसमें, तो इसलिए मेरे को जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ, और मैं जर्नलिज्म हैज़ बीन माई ब्रेड एंड बटर, तो मैं दो लाइनें जो है ना, एक पुरानी राजेश खन्ना की फिल्म का गाना है, वो कह के जो है ना, जब भी मैं आजकल मैं एक्चुअली जब सोचता हूँ, बिकॉज आई एम एट दैट जंक्चर जो है, तो वापस मुड़ के देखता हूँ और आगे जर्नलिज्म का क्या होगा, तो शायद हाँ, आपकी कसम फिल्म का गाना है उनकी, जो है शायद जो है कि वो करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। तो हम तो जब भी जर्नलिज्म के बारे में आजकल सोच रहे हैं, तो हमारी हालत तो यही हो रही है। I think that were wonderful comments being put by the panelists. Before we end the session, any questions for? That's wonderful. We'll go one by one. Let's start from there. Yes. I'll come on by one. Yeah, you can take this. Thank you. I don't know whether I'll be able to put this in a nicer way or not. एक कॉमन मैन के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम रॉ न्यूज़ पढ़े, तो आपके तरफ से वो कैसे सजेशन, लाइक अभी हम जो देखते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सड अप हो चुकी है, थोड़ा ड्रामेटाइज्ड है, थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कौन सा पूरा सच है कौन सा नहीं। तो अगर आप किस तरीके से उसको फाइंड आउट करते हो कि कौन सा हम लोग मतलब रॉ फॉर्म में हम कैसे देख पाए एज एन ऑडियंस? Perfect. So his question is, how do we filter news? What is your point? Let's take all questions together. Upper point. My son is a journalist working from Bombay. He grew up, I might say, left-center personal belief. But now the firm he works for, the media house he works for, is owned by a corporate giant. How does he reconcile he keeps complaining I'm hating it. कि मेरा पर्सनल आइडियोलॉजी और ये इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। Okay, How does a ideological journalist do that? So ideological difference. Yes, your point. I'll come there after. Yes. सर, हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो न्यूज़पेपर्स चलाया करते थे,
आपने अभी बताया, मास कम्युनिकेशन के जो स्कॉलर्स हैं वो उन न्यूज़पेपर्स को न्यूज़पेपर्स नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि ये माउथ पीसेस थे, क्योंकि न्यूज़पेपर का डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट ये होता है कि आप 5WNH आप दोनों साइड्स रखते हो। अब ये जो न्यूज़पेपर थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स चलाते थे, ये दूसरी साइड तो रखते नहीं थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये सिर्फ एक जो उनका व्यू था वो देते थे। तो उनको न्यूज़पेपर कहें या न कहें? I will come one by one. Let's pick this up. Yeah. ये अभी नंदिता जी ने कहा कि प्रेस जर्नलिज्म इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जर्नलिस्ट लोगों का कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, कि किसी क्या परोसे लोगों को, हम लोगों को क्या परोसे, कि उनको जो लाइक होता है, टेस्टी होता है वही परोसे, कि उनके हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो परोसे। इज देयर एनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द जर्नलिस्ट? Let's take these questions. We'll come back again. I have a similar question to ask. Yeah. Okay. Yes. Very close to what he just said. Although I totally understand your point of view, I quite, to a large extent, agree with him also. But I do believe ethics is an important word. It's not borrowed from the West. Ethics also came into play with Western philosophers, no doubt, but when democracies happened. Otherwise, before that, it did not exist in the English vocabulary also. So, ethics is a word that was born out of democracies. And the vocabulary you are talking about happened far before anything like a democracy ever existed. Right? So, we as a language, and you have actually said that as a part of your conversation, that as a language, we never evolved as fast as an English language or other French or other languages have evolved. They kept adding more words. Today in Hindi itself, we are using half English words. So ethics needs to come into our vocabulary. चलिए पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैं एथिक्स वाले सवाल पे बोलता हूँ, बाकी पे ये लोग। Let's summarize the question. So there was one question there on filtering news. There's one question here on ideological battle. There's one question there on mouthpiece versus newspaper, moral values, adding ethic and evolving language. देखिए, Over मैं to you. लंबी बहस इसके बाद हम लोग, मैं कल भी यहाँ पे हूँ, तो आप अगर रहेंगे तो उस पर हम लोग विस्तार से चाय पे चर्चा भी कर लेंगे, ठीक है ना। डेमोक्रेसी का जो वेस्टर्न मॉडल है वो 1789 के बाद इमर्ज हुआ है, और वो एक फॉल्टी मॉडल है। और ये जो आपका एथिक्स है वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है। हमें डेमोक्रेसी वेस्ट से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे 5000 साल पहले भी बेसिकली जो ना, वी हैड डेमोक्रेसीज, वी हैड जनपदास। अगर आप यजुर्वेद उठाकर देखेंगे या ऋग्वेद उठाकर देखेंगे, वैदिक लिटरेचर देखेंगे, उसके अंदर जो है, एंड देन इफ यू लुक एट बेसिकली व्हेन द वेस्ट वाज गोइंग थ्रू द डार्केस्ट ऑफ इट्स एजेस, इंडिया वाज अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। I would suggest basically 2 books. One is Hindu Polity by K.P. Jaiswal, and The Fundamental Unity of India by Radha Kumud Mukherjee. ये दोनों ही सज्जन जो है, इनका ना नहीं, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एथिक्स खराब शब्द है। मैं ये कह रहा हूँ एथिक्स हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं, एथिक्स हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज द रीजन। मैं भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ, ठीक है, लेट्स नॉट चलो, गो इनटू okay. दैट। अच्छा, मैं आपसे टर्मिनोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, बट फिर भी मुझे ये लगता है कि जो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारा इवॉल्व हो रहा है, और देखिए एथिकल में, जैसे मैंने आपसे कहा ना, एथिक्स की डेफिनेशन ये है कि उचित और अनुचित क्या है, यानी क्या सत्य क्या असत्य है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया होने के बाद जो है एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा सत्य जो है, जिसको मैं उचित मानता हूँ, उसको आप अनुचित मान सकते हो, जिसको मैं यहाँ पे I'll tell you, आप जो Debate so on we going are on. talking about semantics, I think, Yeah. अरुण जी। So we are not talking about terminology. हम ऊपर से ये बोल रहे हैं कि क्या ethics journalism में ज़रूरी हैं। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम ethics सही और गलत, अब क्या मैंने और आपने कभी moralistic stand लिया है to answer there was this gentleman here who was saying कि कैसे हम sift करें, right? हाँ, so how do we filter raw news? The question is coming of filtering raw news is because
newspaper reading has not become a habit it's Exactly. no longer a habit. Your primary source is on your phone. You have an app. It's usually a television channels app. I would highly encourage you to actually look at newspapers. See, हम लोग शुरुआत से ही हम लोग जब हमारे घर में 2 पेपर नहीं आते थे, हमारे घर में एक पेपर आता था, चाहे वो हिंदी का आता था, चाहे वो अंग्रेजी का आता था. इट वॉज इसेंशियल रीडिंग. गो बैक टू द बेसिक्स. यू नो, आई फील दैट न्यूज़पेपर रीडिंग अभी हैबिट नहीं रही है. ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी रीजन, आप कहीं पे भी पोस्टेड हो, नागपुर हो, कहीं हो, दिल्ली में तो वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, बट यू शुड ऑलवेज गो बैक टू द न्यूज़पेपर, बिकॉज हमेशा देखिएगा रिटन वर्ड कैन बी होल्ड अप. अ फ्लीटिंग न्यूज़ बाइट विल नॉट बी होल्ड अप. राइट, आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी एंड देन दैट विल आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो. दैनिक भास्कर ने अभी एक इंटरव्यू किया of this gentleman नरपत सिंह राजवी from this भैरव सिंह शेखावत के सन इन लॉ हैं. उनको टिकट डिनाई की गई यहाँ राजस्थान में. उन्होंने एक भड़कता हुआ इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा जिनको टिकट दिए है, जो एमपी को टिकट दिए है, वो मुगलों के तलवे चाटते थे एंड ऑल ऑफ दैट. एंड देन ही डिनाइड इट बिकॉज ही गॉट इनटू ट्रबल. When he denied it, he says, मैं तो इनसे मिला भी नहीं. The newspaper release did not take any stand. It released the transcript of the written word. By the way, my diary notes are admissible in the court. तो उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट रिलीज की, उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज की और वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज की, पर कहा ये है तथ्य. हाउ कुड दे डू इट? बिकॉज इट वॉज अ रिटन वर्ड and they had the video evidence. Always go by the written word. Right? Sir, about your question on how should he do this, this thing. All my life I have never agreed with any government. That's my problem. I am the watchdog. अगर मैं watchdog हूँ, मेरा ये काम नहीं है ये बोलना कि मैं सिर्फ PR करने के लिए केंद्रीय सरकार के पास प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो हमें प्रेस रिलीज पकड़ाता है, पर मेरा काम नहीं है उनका PR करना. राइट, इट इज़ नॉट माई जॉब टू टेक अ मॉरल स्टैंड. इट इज, इफ ही इज अ रिपोर्टर, he has the avenue of reporting. Like today we are meeting in this room, Nidhi Sharma said this, Arun Anand said this, Nandita Ompuri said this. Now the fact whether he agreed with Arun Anand's ethics thing is not his prerogative because he is there to do a job. Now, does he agree with Arun Anand? Does he agree with Nidhi Sharma's take? Does he agree with ma'am's take on democracies? Is for the opinion pages. We have spaces to address that. The problem happens when these spaces get blurred, which is happening all the time. Absolutely. That's my problem. And that is where the lines in the newsrooms get blurred too. Right? Because we are now opinion makers, but we have an opinion, unfortunately, when I'm reporting also. जी बताइए सर. जी. सर बहुत अच्छा है सर. देन दिस इज अ नो आई विल टेल यू. देखिए, जो हमारा पब्लिक डिस्कोर्स का लेवल हो गया है, जब हम एक दूसरे को नेम कॉलिंग करते हैं. छोटा सा एनेक्डोट देती हूँ कि कितनी टफ चॉइसेस हैं न्यूज़पेपर पढ़वाने में भी. माई 12-year-old son comes back to me. I came back home and he says, Mama, Rahul Gandhi has called the Prime Minister Patodi, which means bad omen. As a parent, I did not know correct करूँ, नया शब्द सीखेगा या छोड़ दूँ. Right? I said, where did you read it? That what he gets from the newspaper from the school also carried it. And he understood Patodi because Nawab of Patodi cricket में interested है लड़का, तो उसने Patodi समझ लिया. Very tough parenting choice for me whether I should teach him Panoti because it is a word. I just asked him bio में कितने आए and we just moved on. I didn't tell him. So I'm जी sir. Interesting point you made. And it's a genuine question that I'm asking. If the entire television media
has been seduced or subverted, whatever you wish to call it. Why haven't newspapers fallen prey? Because they go by the same model. I'd really like to know why newspapers are holding out and not the television. Sir, that is first of all, sir, we have grown up listening to you, and as a child, I have watched you. Yes. So, sir, I feel I'll tell you a very genuine answer to this. I don't think newspapers have also held out. You have to take your word. No, sir. I'll tell you. But as my friend said, that there are a few bad apples, but does not mean that I throw the entire fruit basket away. There are few of us, I would genuinely tell you, who fight every day to actually mark our presence there. I gave an example before this on my session. Very briefly, I'll offer it to you. I covered Rajasthan. I work with the Economic Times, sir. I covered Rajasthan elections, and I made this brief point. कोई इन्फ्लेशन के बारे में वहाँ बात नहीं कर रहा. कॉटन की क्रॉप खराब हो गई है. राइस पैडी के फार्मर्स रो रहे. Nobody is raising it to a journalist who's asking them problems क्या हैं. सड़कें खराब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, चाहे वो भाजपा शासित क्षेत्र हो या राज्य हो कांग्रेस शासित. The entire election is being run on freebies, 200 unit free power. I have taken care of the aspirations by giving them laptops and phones. Right, sir? So my thing is, even in that, I found English medium schools being introduced mindlessly. And I can say, if I might sound very pompous, I have found space for that story in peak election season in a newspaper like Economic Times, sir. Anybody can do it, sir. It can take 2 days, it can take 3 days, but we are holding out. Let me promise you that, sir. सर एक चीज ना मैं एक चीज आपको से शेयर करना चाहता हूँ. देखिए क्या है, न्यूज़ गैदरिंग पे पैसा नहीं खर्च कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस. फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है. अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें कि जिनके ह्यूमन फेसेस वाली, जिसको हम ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज कहते हैं, उसमें आपको कोई सरकार के खिलाफ कोई पैम्फलेट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती या वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो चीज़ें अपने आप बेसिकली रिफ्लेक्ट करती हैं. व्हेन वी हैड स्टार्टेड जर्नलिज्म जो है, तो पहली चीज़ ये होती थी, आई स्टिल रिमेंबर कि क्योंकि एजेंसीज नहीं थी, वो था कुछ भी हुआ, चरखी दादरी के ऊपर जो है 2 प्लेन आपस में टकरा गए थे जिसमें 350 के करीब लोग मर गए थे जो है. तो टेलीफोन लैंडलाइन के होते थे जो है. बॉस का फ़ोन आया रात को 9 बजे जो है, टैक्सी लो चरखी दादरी निकल जाओ. चरखी दादरी जो है वो आधे लोग तो जो है वो दादरी यूपी वाला था उसके अंदर चले गए, ठीक है ना. चरखी दादरी वॉज इन हरियाणा. 3 दिन हम वहाँ पर रहे, फैक्स से स्टोरी फाइल करने के लिए जाते थे, ठीक है ना. 3 दिन का वापस आए, बॉस ने कहा 6 घंटे के लिए जो है रेस्ट लो, कपड़े चेंज करो पुराने उसमें से. तो बिकॉज 300 जून का महीना, मॉर्चरी में 6 डेड बॉडीज की जगह थी जो है. 350 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, मतलब बह रही थी बेसिकली. फ्लैश वॉज फ्लोइंग लाइक दिस थिंग, मतलब वी वर स्टिंकिंग ऑफ यू नो द डेड बॉडी स्मेल. वापस आए, कपड़े निकाले, उस पर मिट्टी का तेल डाला, उनको जलाया, इतने इन्फेक्टेड हो चुके थे. नए जोड़ा पहना, दोबारा टैक्सी ली, वापस चले गए 3 दिन के लिए वहाँ पे. तो उसमें क्या है कि आप अगर गवर्नमेंट वहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो एपैथी आप शो करते हो. इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. एंड इफ यू आर अ स्मार्ट एनफ रिपोर्टर बेसिकली जो है ना, तो आप बिना कहे बहुत सारी चीज़ें उसमें, मतलब यू डोंट हैव टू टेक यू नो द गवर्नमेंट हेड्स ऑन जो है. योर स्टोरीज विल स्पीक फॉर देमसेल्व्स. सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर एक ये हुआ है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, पहले जैसे निधि ने कहा कि हम लोग न्यूज़ लिखते थे. अभी हम लोग क्या, हमने एडिटोरलाइज कर दिया है. तो जब हम खबर शुरू होती है तो पहले उसमें हमारा ओपिनियन होता है. आई रिमेंबर द फर्स्ट लेसन विच आई हैड गॉट फ्रॉम माई फर्स्ट बॉस इन जर्नलिज्म. आई हैड रिटन अ कॉपी एंड ही हैड मतलब लिटरली ऑलमोस्ट लाइक थ्रैश्ड मी, क्योंकि मैंने उसमें क्राइम की कॉपी में ये लिख दिया था, इन अ बिजार इंसिडेंट. And he told me, he said, how dare you write in a bizarre incident? You cannot, as a reporter, you're not supposed to use an adjective. Let the reader decide. You write the copy in such a manner whether it was a bizarre incident or not. आजकल जो न्यूज का फ्लो हो गया है वो इसकी वजह से हो गया है. और मैं जस्ट गो बैक टू दिस होल थिंग अगेन, जो सर जो एडिटर का इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय हो गया है, खत्म हो गया ना. एडिटर यूज टू बी द कुशन बिटवीन बेसिकली यू नो द मैनेजमेंट जी है एंड दी जर्नलिस्ट जो है. तो ये डीप रूटेड वो है मुझे लगता है. लेकिन अभी भी अच्छा काम मुझे लगता है, खासकर मैंने पहले भी कहा था क्षेत्रीय भाषाओं में तो अच्छा काम मेरे को लगता है कि हो रहा है.
मैं थोड़ा पढ़ता हूँ क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार जो है, तो मुझे लगता है कि अच्छा काम हो रहा है जो है. बट यस, लास्ट बात सर ये कहूँगा, जर्नलिस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है, वी थिंक दैट वी आर गॉड्स गिफ्ट टू द मैनकाइंड. हम इंट्रोस्पेक्शन करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते ना जो है. तो ये यहाँ से मुझे लगता है कि शुरुआत करने की जरूरत है. Yeah. So we have a young reporter from Times of India. He has a question. तो भाई एक मत देना. ऑफ द रिकॉर्ड था. Nay, why? It should be part of it. That's the whole idea. But ma'am, somehow the image of print media has been diminished due to the convenience of people, that they think that watching a 30-second clip is more easy and convenient rather than going to 300-word article, though it's more knowledgeable and informative. So what should print media and newspaper writers do to revive the interest of people, or we should just focus on our work rather than thinking of what other types of media is? No, I think, we need to constantly evolve. मतलब आपको लग रहा है मैंने किताब लिख ली, आपको लग रहा है हाँ ठीक है, penultimate वो हो गया. Can you imagine? I just underwent a proper training on digital media, podcasting and video making just about 2 weeks back, right? We had, like, in Economic Times and Times of India, all of us journalists took those training because I need to evolve too. अगर मेरा reader नहीं पढ़ना चाहता है 500 वर्ड की स्टोरी, तो उसको 150 से 200 वर्ड में मुझे क्रंच करके उसको देना पड़ेगा. अगर उसको फीचर पढ़ना है, किस फॉर्म में पढ़ना है, क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी होंगी, वो इसेंशियल है. ये कह देना कि नहीं ये नहीं होगा, नॉट पॉसिबल. आप देखिएगा वीडियो में भी अभी शॉर्ट्स आने लग गए हैं, राइट? तो वो अभी जैसे इस ट्रेनिंग में विच वॉज सो स्कैरी फॉर मी, उसमें बोला गया अटेंशन स्पैन 3 सेकेंड होता है. तो मेरा पॉइंट था, भैया मैंने किताब किसके लिए लिखी है फिर? तो आई विल नेवर राइट अनदर बुक. ही हैज रिटन 20, ही विल स्टॉप नाउ. 3 सेकेंड. हाँ, आप क्या करेंगे? आपका तो रेवेन्यू मॉडल ही खराब है. तो 3 सेकेंड में 3 सेकेंड आई विल नॉट इवन अटर अ वर्ड. 3 सेकेंड. उन्होंने कहा अगर वो बंदा पॉडकास्ट में 5 मिनट रुक जाता ना, वो 30 मिनट का देगा. आई सेड दैट स्टिल डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई लल्लन टॉप नेता नगरीज लैपटॉप फॉर 54 मिनट्स. सो आई डोंट गिव दैट कि ठीक है अटेंशन स्पैन कम हो रहा है. अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है जो हमारे सब जगह दिखेगा आपको. रीड. I think read, yes, but I need to reinvent and give the news in a different manner also. 150 वर्ड में मैं क्रंच करके सुबह अगर कम्यूट में जा रहा है तो मैं दे सकती हूँ, मैं मोर पॉडकास्ट दे सकती हूँ. उसके लिए मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा. Essentially, the other point that she mentioned earlier also is in the process of journalism. आप वैलिडेट वेरीफाइड न्यूज प्रोड्यूस करेंगे, उसको किसी भी प्लेटफॉर्म में दीजिए. टेक्स्ट इज अ प्लेटफॉर्म, ऑडियो इज अ प्लेटफॉर्म, वीडियो इज अ प्लेटफॉर्म, इट कैन गो एनीवेयर. बट आर यू वेरीफाइंग? आपने जब कलेक्ट किया, नोट्स बनाए, उसका वैलिडेशन किया, सो दैट यू हैव अ प्रूफ टू एंश्योर दैट नोबडी कॉल्स इट एज फेक न्यूज. दैट्स आई थिंक So व्हाट that is very वीडियो से. important. There are so many apps nowadays. वो डिमेंशन हमने खोला ही नहीं है. एआई तो अभी शुरू ही नहीं किया है हमने. हम भी lesser models हैं. One thing that Elon Musk had put a tweet out just about 3-4 weeks ago, saying that in the times of Twitter where 140 words, 200 or 300 letters, news is redundant, newspapers are redundant, and I had replied to that tweet saying, 50 years or 100 years later, when people look back at the times of today, they are not going to come to Twitter search, they are going to come to newspapers and To check records. Yeah. what the first draft of history, right? Yes. Yeah, Absolutely. Yes. So it's a vanity to think that Yeah. it's 2 minutes. Exactly. Yeah. Okay. And- Last and in, point. And in a few years, I think Elon Musk will also be redundant. Last point. Yeah. मीडिया हाउसेस ने जनता को बाइपोलर बनाया है या जनता ने मीडिया हाउसेस को बाइपोलर? अंडा पहले आई है मुर्गी. That's another debate. Yeah, it's so I think we'll probably end this session on an open-ended question and see you next year with this particular session to start again. Newspaper,
नहीं नहीं, ऐसा है कि वो अब एकेडमिया में बेसिकली दे आर कंसिडर्ड टू बी दिस थिंग जो है न्यूज़पेपर, उनको न्यूज़पेपर ही मानना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरे एंड पे अगर वो देखेंगे कि जैसे स्टेट्समैन या द ट्रिब्यून उस समय जो छप रहा था, ठीक है ना, वो अंग्रेज़ों के ओनरशिप में था, तो वो उनके माउथ पीस थे, ठीक है ना। सो इट इज़ जस्ट लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे रॉयटर्स जब सेटअप हुआ, सब वो हुआ, तो जो उनके अपोनेंट्स थे वो ये कहते थे कि ये तो उनके माउथ पीस हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये हमेशा दोनों साइड से जो है वो रहता ही है। यू शुड, आप उसको साइट करिए, उस साइटेशन को बेसिकली कोई काउंटर नहीं कर सकता जो है ना, बिकॉज मैं साइटेशन उसका करता हूँ जो है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वो नहीं आता है। और आई डोंट थिंक दैट इट शुड बी अ प्रॉब्लम जो है, वो ठीक है जो है। कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। एंड ऑन दैट नोट, इट वाज अ वंडरफुल डिबेट एंड ग्रेट